الحمد لله رب العالمين وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے درمیان قربانی کے متعلق سے چند اہم گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ قربانی کا وہ عظیم لمحہ ہم سے بالکل قریب تر آتا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قربانی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، قربانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ قربانی اتنا عظیم عبادت ہے کہ جب کوئی انسان قربانی کرتا ہے تو اس کے جانوروں کے ایک ایک بال کے برابر اللہ اسے نیکی عطا فرماتے ہیں. ایک موقع سے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لیکن جس آیت مبارکہ کا سہارا میں نے لیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز آپ کے لیے، میری قربانی آپ کے لیے، میں یہاں تک کہ میرا مرنا اور جینا آپ کے لیے. لیکن آج ہم یہ اندازہ لگائیں، ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہمارے اندر کتنی پرہیزگاری ہے، ہمارے اندر کتنی للہیت ہے. قربانی سے پہلے اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ قربانی اللہ ہی کے لیے کی جائے. کیا مطلب ہے؟ آج معاشرے میں دیکھا جائے، سماج کو دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ لگایا جائے گا، آپ اندازہ لگا لیں گے. بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو قربانی کی جانور کو دیکھتے ہیں کہ جانور کتنا موٹا ہے، جانور کتنا زیادہ پاورفل ہے. لوگ دیکھتے ہیں جانور کی قیمت کیا ہے، لیکن اچھی طرح سے یاد رکھیے، اللہ کے یہاں نہ آپ کے جانور کو دیکھا جاتا ہے، نہ آپ کے جانور کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو ہمارے اور آپ کے نیت کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہم جب بھی قربانی کریں تو صرف اللہ کے رضا کے لیے کریں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اگر اس عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، یعنی لوگ کہنے لگے کہ دیکھیں فلاں آدمی نے اتنی قیمت کا قربانی کیا، فلاں آدمی نے اتنا زیادہ، فلاں آدمی کے جانور میں اتنا زیادہ گوشت تھا. اگر یہ دکھاوا آ گیا اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ لوگ یہ کہیں کہ ہمارے جانور بہت قیمتی ہے، ہم نے بہت قیمتی جانور خرید کے لایا ہے، تو یہ دکھاوا آپ کی قربانی کو قبول ہونے سے روک لے اور یہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ ریاکاری، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم جو بھی کریں اللہ کے رضا کے لیے کریں، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ اپنے دلوں کی بات کو جانتا ہے. اس لیے ہم قربانی کریں تو اللہ کے رضا کے لیے کریں. آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کو اس سے پتا چلے کہ اگر کسی بھی عمل کے اندر، صرف قربانی ہی نہیں، کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی عبادت ہو، ہم اسے صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کریں. اگر ہم نے اللہ کے رضا کے لیے نہیں کی
बल्कि किसी को दिखाना मशगूल था, किसी को दिखाना ही हमारे जहन के अंदर था कि लोग हमें देखें, लोग हमें देखकर यह कहे कि फला आदमी कुर्बानी अच्छा करता है, लोग हमें देखकर ये कहे कि फला आदमी नमाज अच्छी पढ़ रहा है। तो अगर हमारे अंदर रियाकारी आ जाती तो ये अमल हमारे लिए नुकसानदेह होगा। एक हदीस में आपको बयान करूं, मुल्क शाम से एक शख्स निकला और वो मदीना तैयबा पहुंचा। उन्होंने लोगों से मालूम किया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ है। लोगों ने पता बताया। आप वहाँ गए तो आपने उन्हें नहीं पाया। फिर आप बाजार में गए तो आपने उनको बाजार में पाया। तो आपने पूछा आप कौन है और कहाँ से आए। वो शख्स कहता है कि मैं मुल्क शाम से आपसे अल्लाह के नबी की हदीस सुनने आया हूँ। अबू हुरैरा ने कहा कि आप सिर्फ हदीस सुनने के लिए मुल्क शाम से सफ़र करके आए। उन्होंने कहा हाँ, मैं सिर्फ हदीस सुनने के लिए आया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हें ले गए। ले जाने के बाद आप बैठे और उन्हें अपने सामने बैठाया और आपने फरमाया आज मैं तुम्हें वो हदीस सुनाऊंगा जो हदीस आज से पहले मैंने किसी को नहीं सुनाई थी। उसके बाद आपने कहा कि ये वो हदीस है जो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनी है। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नम को जो दहकाया जाएगा वो सबसे पहले 3 बड़े बड़े शख्स के दहकाया जाएगा। आपका इतना कहना था कि आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। रवायत में आता है कि आपको फिर दोबारा होश आया। फिर आप इस हदीस को बयान करना चाहते थे। फिर अबू हुरैरा एक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद आपने कहा कि मैं ये हदीस सुना के रहूंगा। उसके बाद आपने ये हदीस सुनाई। आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा जब जहन्नम को दहकाया जाएगा। जहन्नम तो ऐसे ही दहक रही और वो कितना बदबख्त होगा जिससे जहन्नम को और भी दहकाया जाएगा। फरमाया गया उसमें से एक शहीद होगा जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान किया। उसमें से दूसरा सखी होगा जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है। उसमें से तीसरा हाफिज कुरान और कारी कुरान होगा। एक रिवायत में है कि आलिम होगा। अल्लाह ताला तीनों को बुलाएंगे। शहीद से कहा जाएगा कि मैंने तुम्हें ताकत दी थी, मैंने तुम्हें कुव्वत दी थी, तुमने इस कुव्वत का क्या इस्तेमाल किया, तुमने इस कुव्वत के जरिए क्या किया। वो शहीद कहेगा अल्लाह हम आपके दीन के लिए लड़ते रहे यहाँ तक कि आपके रास्ते में शहीद हो गए। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू झूठा है, तू झूठ कहता है, तो इसलिए शहीद नहीं हुआ था कि तुम मेरी रजा के लिए, बल्कि तुम इसलिए शहीद हुए थे कि लोग तुम्हें बड़ा ताकतवर कहने लगे, लोग तुम्हें बड़ा कुव्वत और ताकत वाला कहने लगे और वो कुछ दुनिया में कहा जा चुका। रिवायत में आता है उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे अल्लाह कि जाओ इसे जहन्नम में घसीट कर लेकर जाओ। उसके बाद उस शख्स को जहन्नम में घसीट कर लेके जाया जाएगा। आप अंदाजा तो लगाइए शहादत कितनी बड़ी नेमत है जिसके बारे में फरमाया गया जैसे मुजाहिद के जिस्म से खून का कतरा जमीन पर गिरता है अल्लाह उसी वक्त उसको माफ फरमा देते हैं। लेकिन उस शहादत के अंदर भी अगर रियाकारी आती है तो शहादत जैसी अजीम नेमत के बावजूद इंसान जहन्नम में चला जाएगा। उसके बाद फरमाया एक सखी को बुलाया जाएगा। सखी से पूछा जाएगा मैंने तुम्हें मालो दौलत दी थी, मैंने तुम्हें बहुत माल का अंबार दिया था, तुमने इस माल के जरिए से क्या किया। वो सखी कहेगा अल्लाह मैं आपके रास्ते में खर्च करता था, मैं गरीबों की मदद करता था, मैं मस्जिदें तामीर करता था, मैं दीन के रास्ते में खर्च करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम मस्जिद में खर्च करते, दीन के रास्ते में खर्च करते, ये सारी चीजें इसलिए थी कि लोग तुम्हें बड़ा सखी कहे, लोग तुम्हें बड़ा मालदार कहे, तुम मेरे रजा के लिए नहीं किए थे और वो सब कुछ तुम्हें कहा जा चुका है। उसके बाद फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे भी पकड़ कर जहन्नम में घसीट कर लेकर चले जाओ, उसे भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में लेके जाया जाए। आप अंदाजा लगाइए कितने अफसोस की बात है।
सखावत कितनी अजीम चीज़ है। फरमाया जो सखी होता है वो अल्लाह के करीब होता है, वो जन्नत के करीब होता है। लेकिन इस सखावत में भी अगर रियाकारी आ गई तो वो सखावत भी बेकार है। उसके बाद जो फरमाया उसके बाद एक आलिम होगा, उससे कहा जाएगा मैंने तुम्हें इल्म दिया, इस इल्म से तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैं तेरे दीन को सीख कर लोगों को सिखाता रहा, लोगों को बताता रहा, लोगों को समझाता रहा, लोगों तक पैगाम को पहुंचाता रहा। अल्लाह ताला फरमाएंगे तू झूठा है, तू मेरे दीन के खातिर नहीं बल्कि तूने इसलिए इल्म सीखा था, तू इसलिए लोगों को दीन की बात बताता था कि लोग तुम्हें बड़ा आलिम कहने लगे, तुम इसलिए लोगों को कुरान सुनाता था कि लोग तुम्हें बड़ा कारी कहने लगे। और ये सब कुछ कहा जा चुका है, रिवायत में आता है उसके बाद फरिश्तों को हुक्म होगा इसे भी लेकर जाओ और मुंह के बल जहन्नम में धकेल दो। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम लोगों की। क्या हाल होगा इस रियाकारी की वजह से, आप अंदाज़ा लगाइए ये रियाकारी कितनी बुरी अमल है। इसलिए हम कुर्बानी करें, कुर्बानी से पहले अपने दिल को साफ व शफाफ कर लें, ना गोश्त के इरादे से करें और ना ही लोगों को दिखाने के लिए करें, सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए कुर्बानी करें। उसके बाद जब हम अल्लाह के रज़ा के लिए करेंगे तो वो अमल हमारे काबिल कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी और तमाम लोगों को रियाकारी से बचाए और कुर्बानी खालिस अल्लाह के लिए करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।